Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. We are giving a continued lecture series on rotational dynamics, and today's lecture is on torque. What is torque? What is the concept of torque? What do we mean by torque on an object or on a system, on or any kind of a rigid body about some point? What do we mean by that? And what are its applications? How to find torque on an object about a point in some cases. So, torque. Torque. How we define a torque on a body about a point? It is also defined about a point. The way angular momentum is defined about a point, angular velocity is defined about some axis or about some point. Angular rotational quantities are always defined about some point. Always. So, torque is also a rotational quantity, which we have to define about a point. So, what is torque about a point? How we define it? Let us take a point here, fixed point O, and there's an object here of mass m, let me suppose. And what is its position with respect to this point O? Obviously, a radius vector or radius vector. The object is at a displacement or with respect to the fixed point O. And what is the torque on this object about this point O? The answer is 0, because we are not applying any force on the object. We need to apply a force on the object to produce torque about this point O, and we apply force in this direction, let me suppose. This is the direction of the force on this object. So we are in a position to define torque on this object about this point when you apply force F. What is the angle between a radius vector and force? That is something like this. This is theta, it's put in the forward direction. This is theta. Theta is the angle between radius vector and force. The torque is defined by an equation, torque tau, written as equal to R cross F. That is all. If R cross F quantity is the torque on this object about this point. That is all. So, what is the direction of R cross F? R is this, along the R, and you wind your fingers towards F, watch where the thumb goes, this inwards. So, torque is perpendicular to R and F. R, it is perpendicular to the plane of R and F. जो R और F से plane बनता है, torque is perpendicular to that. जो आपके राइट हैंड रूल से आपको डायरेक्शन मिलेगा, R क्रॉस F इज इनवर्ड्स. पहले आप इमेजिन कीजिए R और F में कौन सा प्लेन बनता है. वो तो बोर्ड का ही प्लेन है. फिर आपको परपेंडिकुलर डालना है, लेकिन परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, बाहर के ओर भी और अंदर की ओर भी. बाहर के ओर भी डायरेक्शन हो सकता है, अंदर की ओर भी, लेकिन अब वो राइट हैंड फैसला करेगा ये अंदर की ओर है या बाहर की ओर है. तो आपको क्या करना है, R को F में कर्व करके थंब को देखना है कहां की ओर जाएगा. दैट इज इनवर्ड्स. सो R क्रॉस F इज इनवर्ड्स. सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड्स. So what is the magnitude of torque? That is RF sin theta, where theta is angle between R and F, where theta is angle between R and F. यह है डेफिनेशन टॉर्क का. So यहां से क्लियर है, अगर थीटा 0 है, मतलब थीटा 0 होने का मतलब ये है कि अगर ये F जो है फोर्स, अगर ये R की डायरेक्शन में होगा, अगर इसी ओर होगा, मतलब अगर ये फोर्स का जो एक्सिस है, अगर ये पॉइंट O के थ्रू पास होता है, फोर्स ये है, अगर ये ऐसे फोर्स है और फोर्स O के पॉइंट से पास होता है, या R की डायरेक्शन में हो या O के थ्रू पास होता हो ये फोर्स, if theta is 0, that means if force passes through point O. if force जो ये है, ये ऐसे है, O से पास करता हो, then obviously theta is 0, torque 0 हो जाएगा. If theta is 180, then torque is again 0.
क्योंकि साइन 180 भी 0 है। तो इन दोनों केसों में क्या होता है, ये जो फोर्स है जो आपने इस बॉडी पर अप्लाई किया फोर्स, इस फोर्स की का जो एक्सिस है, ये जो लाइन है इस फोर्स का जो लाइन है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ओ। इन दो चीजों का मतलब वही होगा। सो टॉर्क इज 0 इफ द फोर्स passes through a point about which you are finding a torque. So here force passes through the point. Passes through the point. अगर ये फोर्स पॉइंट के थ्रू पास होता है, ऐसे नहीं है ऐसे है, तो समझो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अच्छा, अगर थीटा 90 है तो ऑब्वियसली साइन 90 जो है वो तो 1 होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। तो मतलब आर और एफ का सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आर और एफ को, अगर एफ और आर आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये तो एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि अगर टॉर्क जो है, ऐसे मैं अगर लिखता हूं आर, ये एफ साइन थीटा क्या है, ये एफ साइन थीटा। जरा देखो यहां पर, अगर मैं इस एफ के दो पीसेस करूंगा, यहां से एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और यहां से दूसरा कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। ये हुआ एफ पैरेलल, मतलब एफ अलोंग द लाइन ऑफ आर या एफ पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, ये एफ साइन थीटा इट इज परपेंडिकुलर टू आर। तो हमारे इक्वेशन में ये है कि आर एफ साइन थीटा, ये मतलब ये आर जो है इसको एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई है सिंपली। तो आर, ये एफ साइन थीटा क्या है, ये तो वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो आर को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आर और एफ परपेंडिकुलर को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। आपको फोर्स का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है जो आर को परपेंडिकुलर हो, बस मल्टीप्लाई करने से ही काम हो जाता है। या अदर वे ऐसे कर सकते हैं, एफ को पूरा ही लिखो, पूरा ये एफ, लेकिन अब ये जो आर है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इस पर परपेंडिकुलर डालने से, बिकॉज इट इज आर, ये थीटा, ये भी थीटा है, इट इज आर कॉस थीटा, इट इज आर साइन थीटा, वो भी होगा आर परपेंडिकुलर, बिकॉज ये जो आर का कंपोनेंट है ये एफ को परपेंडिकुलर है, इस पूरे एफ को परपेंडिकुलर। या आप एफ पूरा लिखिएगा, आर साइन थीटा, जो यहां आर साइन थीटा वो आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है, टेक्निक हमें मिला कि हमें वो फोर्स और वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वो कंपोनेंट ऑफ आर मल्टीप्लाई आपस में करने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो उनको सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट आर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उनको मल्टीप्लाई करने से आपको टॉर्क मिल जाएगा। Multiply that R and that force perpendicular to each other, multiply that force and that R which are perpendicular to each other. Though this is a very easy technique to find the torque in the given cases. आपको क्या करना है, फोर्स का लाइन डालना है, आगे पीछे करना है, फोर्स को एक एक्सिस बनाना है और पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है फोर्स की एक्सिस पर। एक तो वो सारा फोर्स, दूसरा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मल्टीप्लाई करके आपको टॉर्क मिल जाएगा। ठीक, ये एक चीज। सेकंड पॉइंट, यही आर क्रॉस एफ जो टॉर्क कहलाता है। अब मैं क्या करूं, कंपोनेंट फॉर्म में कर दूंगा। ये आर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसको आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड कर दूंगा। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, क्रॉस करके फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में लिखिए 3 डायमेंशंस में, आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। इसको आगे क्रॉस करके, यू नो आई क्रॉस आई इज 0, आई क्रॉस जे इज के, वो सब करके आगे जा करके ये और एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन आई वांट टू शो इन ए शॉर्ट वे। इसको एक डिटरमिनेंट बनाइए, आई जे और के, एक्स वाई जेड और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इज इक्वल टू, ये शॉर्ट करने के लिए, अदरवाइज यू कैन डू इट। इसको क्रॉस करने से फिर इसको तीनों के साथ क्रॉस करो, फिर इसको तीनों के साथ क्रॉस करो, तीनों के साथ क्रॉस करो, तो ये तो 6 टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स खत्म हो जाएंगे। आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बाकी ये 6 टर्म्स आएंगे। लेकिन हम आपको ऐसे दिखाएंगे, आई इंटू ये लाइन खत्म करके ये लाइन खत्म, इनको मल्टीप्लाई कीजिए वाई एफ जेड, फिर इसका उल्टा ही कर दो,
फिर इसका उल्टा करके z एफ वाई प्लस जे टाइम्स ये खत्म z एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के टाइम्स ये खत्म, ये दो लाइन्स ऐसे खत्म करना पड़ता है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये है टॉर्क इन द कंपोनेंट फॉर्म। टॉर्क का एक्स कंपोनेंट ये है, टॉर्क का वाई कंपोनेंट ये है, टॉर्क का जी कंपोनेंट ये है। याद रखने के लिए एक्स कंपोनेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो होता नहीं, ना एफ का ना डिस्प्लेसमेंट का। जे कंपोनेंट में वाई कोऑर्डिनेट नहीं होता है, के कंपोनेंट में जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता है। याद रखने के लिए ये मैंने आपको दिखाया। अच्छा, सो टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रोटेशनल डायनेमिक्स। आगे जाकर हम देखेंगे जब टॉर्क अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पर अबाउट सम पॉइंट, इट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट चेंज। सो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। यह वही बात है फोर्स की वजह से, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। हियर इफ यू अप्लाई टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, then angular momentum about that point of that object changes. It is a similar analogical situation. वहां से वहां फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। यहां टॉर्क अगर अप्लाई करोगे बॉडी पर अबाउट सम पॉइंट, तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा ओनली अबाउट दैट पॉइंट, नॉट अबाउट एनी अदर पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। अगर if you apply torque on the object about some point, that simply means angular momentum about that object will change. So that's the importance of the torque. It finds the applications in that when we connect the dots, जब हम फिजिक्स कनेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं टॉर्क को डिफाइन करूंगा। एक ऑब्जेक्ट पर टॉर्क कैसे निकालेंगे, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं टॉर्क कैसे निकालें। ऐसा भी होता है कि नेट फोर्स में भी जीरो, बहुत सारे फोर्स अप्लाई होते हैं एक ऑब्जेक्ट पर, लेकिन उन सब का नेट जीरो है। लेकिन नेट जीरो होने का मतलब ये नहीं कि दे विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, मे बी दे प्रोड्यूस टॉर्क दैट एड्स अप। तो नेट फोर्स में भी जीरो, ड्यू टू देयर में भी मेनी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, उनका नेट जीरो हो सकता है, लेकिन जो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे वो जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल कपल, टू फोर्सेस, दैट आई विल शो यू ओके सेपरेटली। अच्छा, नाउ let me go to the point, applications. How to find torque in some cases. चलो यही मैं समझाता हूं। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक ग्रेविटी एक्ट करता है mg, ये फोर्स है। I want to find its torque due to this force. I want to find the torque on the object, on this object about this point O. तो क्या टेक्निक है? I want to find the torque on this object due to the gravitational force about this point. So टेक्निक ये है, देखो ये फोर्स का एक्सिस है, इस ऑब्जेक्ट से लेकर के इस पर एक लाइन डाल दो परपेंडिकुलर, सपोज दैट इज ए डिस्टेंस। सो टॉर्क इज इक्वल टू mg फोर्स इनटू दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस mga, और डायरेक्शन क्या है, इसको आगे ले जाइए, इसको नीचे एरो बनाइए, ये है r, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब डायरेक्शन r क्रॉस f इनवर्ड्स, इट इज इनवर्ड्स, क्रॉस कर दूंगा मैं इनवर्ड्स के लिए, इनवर्ड्स के लिए, अगर डॉट करूंगा आउटवर्ड्स के लिए, ये इनवर्ड्स है। तो ये है आंसर, मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल सेकंड, ये सन है और इस अर्थ इसके इर्द गिर्द घूमती है, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ अबाउट दिस सन, सेंटर ऑफ द सन। रेडियस वेक्टर क्या है? रेडियस वेक्टर इज फ्रॉम सन टू द अर्थ, दैट हैज दिस डायरेक्शन, दैट हैज दिस डायरेक्शन r, f is this, r is this, from center of the sun to the earth. So what is the angle between r and f? थीटा यहां पर क्या है 180, तो what should be torque? rf sin theta, as you know, so torque is equal to rf sin 180, that is 0. So gravitational force acting on the earth due to the sun
will not produce any torque. That is why in all the case you say the earth revolves with constant angular momentum, because the gravitational force does not produce any torque. जब ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसीलिए तो जो अर्थ रिवॉल्व करता है, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंट. Neither it changes its plane, nor it changes the direction of the angular momentum. That is, it retains its plane. It retains this plane all the time, and the magnitude of angular momentum also remains constant. Direction be magnitude. Okay, now let me go to third example. What I am doing with the present lecture is, what is torque? How we can find torque in some simple cases about a point on the object. तो आगे का वाला लेक्चर ये है कि if torque is zero about a point, then angular momentum about that point will be constant. So it is only the torque which will produce the change in angular momentum. That we will do in separate lectures. See. So one more. चलो, ये एक डिस्क है, इस पर आपने यूं फोर्स अप्लाई किया यहां पर, और ये सेंटर से दूर सपोज r/2 है, रेडियस r है. तो मुझे बताइए व्हाट इज द टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द डिस्क, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द डिस्क. ये डिस्क का टॉर्क क्या है? अबाउट O बाय दिस फोर्स. तो ये फोर्स का एक्सिस है, आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला, कितना डिस्टेंस है? r/2. सो F इंटू r/2 इज द आंसर. डायरेक्शन O से ऊपर अपवर्ड्स इज r डायरेक्शन, एंड दिस इज F डायरेक्शन. r क्रॉस F इनवर्स, अगेन इनवर्स इज नो सॉरी, एक मिनट फिर से. ये r है, r का डायरेक्शन फ्रॉम O अपवर्ड्स ऑन द फोर्स लाइन, फोर्स का डायरेक्शन आगे है, तो r क्रॉस F आगे, तो ठीक है, क्रॉस है इनवर्ड्स. सो ड्यू टू दिस टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट of the disk, torque is produced on the disk, and due to this torque the disk will change its angular momentum. That you should keep in your mind. So see D. ये मैंने और एक एग्जांपल लिया, पेंडुलम है, ये आप लेंगे तेल, आपने पुश किया इसको, एंड इट रीचेस हियर, it reaches here and the force is downwards mg, gravitation. ये थीटा हो गया. तो अब आप मुझे बताइए what is torque of this object about this point O. Pendulum is oscillating and you push it and here is the pendulum bob. हमें निकालना है कि इस पर टॉर्क कितना है due to this gravitation force. तो क्या करेंगे? फोर्स का एक्सिस ले लो, फोर्स का एक्सिस ले लो, ऊपर 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 कर दो, एक्सिस ले लो इसका, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, वो तो डाला हुआ है. सो इस L के दो पीसेस कर दो, इट इज L cos थीटा, यहां से यहां, और ये तो यहां से यहां L sin थीटा. तो बताइए टॉर्क क्या है? एक तो ये पूरा mg, दूसरा the shortest distance or the perpendicular distance from O onto the this force axis. What is that? That is L sin theta. Answer. This is the torque. E. Point number E. Point E. Point E. ये देखिए जरा, सपोज मेरे पास R वेक्टर है 2i, F वेक्टर है, ओके, लेट मी मेक इट सिंपल, 2i प्लस, ओके, 3j, ओके, प्लस k. दिस इज फोर्स एंड फर्स्ट टॉर्क. यहां पर सीधे आप बेस फॉर्मूला यूज कीजिए, बिकॉज कोई फिगर नहीं दिया है ताकि यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर, या ऐसी कोई सिचुएशन तो है नहीं जहां से फिक्स्ड पॉइंट पर से आप परपेंडिकुलर डालेंगे द फोर्स एक्सिस पर. यहां आप सीधे ये करो R क्रॉस F. सिचुएशन पर डिपेंड करता है कैसे निकालो. R इज 2i, क्रॉस करोगे 2i प्लस 3j प्लस k. ये जरा 2i क्रॉस i, वो पहला 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ क्रॉस करो, दैट इज 6i क्रॉस j प्लस इट इज 2i क्रॉस k.
ये हुआ 6, I cross J is K according to rules. I cross K is minus J, minus 2J. आंसर हो गया आंसर. ओके जरा ये देखिए आप, ये डिस्क है या स्फीयर है या कोई भी रिवॉल्विंग बॉडी है, तो ये समझो फ्रिक्शनल फोर्स है इस पर, ये आर इसका रेडियस है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है. मुझे बताइए इस डिस्क का टॉर्क ऑन दिस डिस्क ड्यू टू दिस फोर्स एफ, मगर आई हैव टू मेंशन द पॉइंट. ऐसा नहीं चलेगा टॉर्क ऑन द डिस्क. नो, आई शुड से व्हाट इज टॉर्क ऑफ द डिस्क अबाउट द पॉइंट. मे बी सी, मे बी बी, मे बी ए. तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज टॉर्क अबाउट सी, देन व्हाट इज टॉर्क अबाउट बी, then what is torque about A? You have to give me all the three expressions for the torque. So first up, let me find torque about C. Okay, what is that? ये C point है, यहां से डालो परपेंडिकुलर इस फोर्स पर, तो कितना है ये यहां से यहां परपेंडिकुलर 2r, that is F into 2r. Direction, that is r cross f. R is this, f is this is the plane outwards, O dot, outwards. This torque is outwards. What is torque about B? From B, draw a perpendicular, multiply f and that perpendicular distance, that is f into r. Right? Direction, फिर से नीचे की ओर out dot. What is torque about A? Now this force passes through the point A. यह force point A के through pass करता है 0. That was very important. This force passes through the point O. Therefore torque due to this force about this point O is 0, because force passes through the point A. Right? Okay. One more example. One more example. G. It is an inclined plane here, and the body is rolling down the inclined plane. It is rolling down. Frictional force is this F. It is the center. It is radius, and this is the center C. Okay, let this point be A. On this sphere, there is a gravitational force mg that acts at the center of mass. There is also a normal reaction which is perpendicular to the plane. That normal reaction is this. This is the normal reaction. This is the gravitational force, and this is frictional force. And I want to find the torque about point C only. Okay, only about point C, due to F, due to N, due to mg. That's all. I want to find torque about point C on this sphere, about point C on this sphere, due to which force? Frictional force, normal reaction, and gravitational force. Okay, so first tell me what is the torque about the point C due to friction force. Due to friction force, मैं लिखूंगा पहले friction force या due to frictional force. Due to frictional force. How much? It is the C point. Draw a perpendicular from C on to the F. Draw a perpendicular, that is R, F into R. Direction, F into R. Direction, R को ऐसे लीजिए, R cross F, outwards, dot, O out. It is outwards.
What is torque due to about C due to normal reaction N? Due to normal reaction. Torque about C due to normal reaction 0 because this normal reaction passes through the point C. ये C के थ्रू पास करता है, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है ना? Okay. Now, what is torque about point C due to this mg gravitational force? This gravitational force also passes through what? Through C. Through C. इसलिए again 0. So when the force passes through a point, then the torque about that point due to that force is 0. This was the lecture on torque with applications, and you can watch this lecture on YouTube. You can watch this lecture on my application, and on my application there is a lot of material available to you which you can download and solve that material. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Tantray Sir Physics Classes. Thank you.